हरे कृष्णा डिवोटीज, आप सबका स्वागत है आज की भगवद गीता रीडिंग सेशन में। और आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 11 एंड वी हैव रेड फर्स्ट वर्स एंड वी हैव गॉन थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द होल चैप्टर एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर रीडिंग। So in the first verse we had discussed that Krishna is being told by Arjuna that by hearing the instructions you have kindly given me about these most confidential spiritual subjects, my illusion has now become dispelled. तो अर्जुन का मोह जो है वो खत्म हो चुका है, पर अब अर्जुन क्या चाहते हैं, वो प्रैक्टिकली वो सारी विभूतिज जो उनने सुनी श्रवण किया उसके बारे में उसका दर्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब जो है अर्जुन इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा आगे करेंगे। तो लेट अस बिगिन टुडेस सेशन ऑन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय यशोदानंदन जय व्रजजन रंजन, जय व्रजजन रंजन, जय यशोदानंदन जय व्रजजन रंजन, जय व्रजजन रंजन, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Basati Radha Basati Radha Basati Shri Radhe Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Om Gyantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Sabhidam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yugdhapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagarjatam Sagar Raghunatham Nutam Sajiyam Sadvaitam Savadutam Varijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagarita Shri Vishakhanutam Sham He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhuvaevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshtarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare Hare. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhava Bhavayo Hi Bhutanam Shrito Vistarosho Maya Tattvataha Kamala Patraksha Mahatmayam Apichavyam. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Oh, lotus-eyed one, I have heard from you in detail about the appearance and disappearance of every living entity and have realized your inexhaustible glories. So, Arjun is signifying Krishna as lotus-eyed one. So, lotus-eyed, Krishna, you are so beautiful. आपसे सुंदर कोई है ही नहीं इस पूरी सृष्टि में.
सो हाईएस्ट कंपैरिजन हम कर भी सकते हैं. कृष्णा's ब्यूटी इज अद्वितीय. It's unexplainable. It's greatest of the greatest. So why lotus? Because lotus is not a part of this creation. इस सृष्टि का, ब्रह्मा जी की सृष्टि का क्रिएशन नहीं है लोटस. क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी खुद जो है उत्पन्न हुए तो वो कमल से उत्पन्न हुए. कमल नाभि से कमल निकला, गर्भोदक्षाय विष्णु के, उसमें से निकले. तो इट इज क्रिएशन ऑफ विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु. और जो भगवान का धाम है, भगवान कृष्ण का गोलोक वृंदावन, इट इज इन द फॉर्म, इट इज वो जो स्थित जो है वो कमल के ऊपर स्थित है. भगवान का धाम उसी शेप में है, उसी फॉर्म में है. सो दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल. And out of this creation, what lotus? So that's why Krishna has been compared, Krishna's beauty has been compared with the lotus-eyed. So let us go through the purport. तो अब जो है अर्जुन भगवान के विभूति के बारे में सुन लिए, गुह्यम ज्ञान के बारे में सुन लिए, सब कुछ सुन लिए. पर अब जो है रियलाइज करना चाहते, सुनना देखना चाहते हैं, है ना. सो अब उसी तरफ में जो है चर्चा जा रहे है कि अब जो सुना है मैंने, इतनी आपकी अद्भुत जो गुणगान है उसको समझा है मैं, अब देखना भी चाहता हूँ. अब ये आगे उस तरफ ही रिक्वेस्ट करेंगे अर्जुन. Arjuna addresses Lord Krishna as lotus-eyed. Krishna's eyes appear just like the petals of a lotus flower. Out of his joy, for Krishna has assured him in a previous chapter, Aham Krishnasya Jagatah Prabhava Pralayasya Tatha. I am the source of the appearance and disappearance of this entire material manifestation. Arjuna has heard of this from the Lord in detail. Arjuna further knows that in spite of his being the source of all appearances and disappearances, he is aloof from them. तो ये सब जो है कृष्ण से उन्होंने सुना कि मैं ही सारी चीजें जो संसार में प्रकट हो रही हैं उसका स्रोत कौन हूँ? मैं हूँ, कृष्ण हूँ. तो अर्जुन ने इसके बारे में सुना डिटेल में. अब अर्जुन क्या चाहते हैं और जो है जानना चाहते हैं कि in spite of his being the source of all appearance and disappearance, he is aloof of them. कि भगवान सारी चीजों को प्रकट तो करते हैं संसार में, पर उसके बावजूद जो है वो इससे क्या है? अलूफ है, इससे पृथक है, अलग है. How? So as the Lord has said in the 9th chapter, he is all pervading, yet he is not personally present everywhere. That is the inconceivable opulence of Krishna, which Arjuna admits that he has thoroughly understood. तो 9th chapter में क्या बताया कि कृष्ण अपने बारे में कि कृष्ण जो है कर्ण कर्ण में विराजमान है, सर्वव्यापी हैं. सो ये जो इनकंसीवेबल ऐश्वर्य है भगवान का, इस चीज को हम जैसे किसी भी चीज व्यक्ति के बारे में सुनते जानते हैं तो हम समझते एक व्यक्ति एग्जिस्ट करता है, वो कहीं स्थित है, वो एक है, एक बार में एक जगह वहां पे होगा. पर कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है, किसी भी देवता के साथ नहीं है, किसी अन्य ऐसे एंटिटी के साथ एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा रियलिटी कि वो लिविंग एंटिटी कर्ण कर्ण में हर जगह हर समय विद्यमान हो. सो दैट्स व्हाई दिस इज अचिंत्य, इनकंसीवेबल. हम समझ नहीं पाएंगे इस ऐश्वर्य को भगवान के. तो अर्जुन कहते हैं कि इस चीज को मैं मानता हूं, एडमिट करता हूं. हाँ कृष्णा, यू कैन डू. एवं यथातः त्वम् आत्मानं परमेश्वरा दृष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम.
greatest of all personalities, O supreme Hare Krishna. Yeah. So, O greatest of all personalities, O supreme form, though I see you here before me in your actual position, as you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. ना? तो अब वही इच्छा प्रकट कर रहे हैं अर्जुन कि भगवान मैं आपके इस ऐश्वर्य को देखना चाहता हूँ, पुरुषोत्तम परमेश्वरा, इस रूप को मैं देखना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूँ, है ना, और मेरे में बहुत शक्तियां हैं, ये है, तो फिर उनसे क्या बोलना है? ओ यस, आई एक्सेप्ट, यू आर वेरी वंडरफुल, बट नाउ प्लीज शो मी ऑल दोज विभूतिज like Arjuna was shown by Krishna. I want to see that form of yours. तो दिखाइए मेरे को विराट रूप, अपना विश्व रूप दिखाइए अगर आप भगवान हैं तो। एक व्यक्ति ने कहा ऐसा, तो भक्त बोले दिखाइए अपना विश्व रूप। तो कहते तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम्हारे को जो है दिव्य दृष्टि नहीं है। तो भक्त बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान कृष्ण भी ने जो है अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी, तो ऐसी आप भी कर दीजिए, हम देखेंगे आपका विश्व रूप, विराट रूप। तो व्यक्ति चुप हो गया। तो दिस इज हाउ सो मेनी पीपल आर फूलिंग अस कि हम विराट रूप दिखा देंगे, विश्व रूप दिखा देंगे, हम भगवान हैं, ये हैं। All bogus. Only Krishna can do। किसी भी अन्य देवता के बारे में आप किसी भी शास्त्र पुराण में उठा के देख लीजिए, कभी भी किसी देवी देवता में ऐसा विराट रूप विश्व रूप नहीं दिखा। तो इसलिए only Krishna can do that. Only Krishna is the supreme personality of Godhead. बस we have to accept it, follow it, do bhakti, go back home, back to Godhead। खत्म, ज़्यादा लफड़े में पढ़ने का ही नहीं। The Lord said that because he entered into this material world by his personal representation, the cosmic manifestation has been made possible and is going on. Now, as far as Arjuna is concerned, he is inspired by the statements of Krishna, but in order to convince others in the future who may think that Krishna is an ordinary person, Arjuna desires to see him actually in his universal form, to see how he is acting from within the universe, although he is part from it. So, भगवान इस यूनिवर्स से अलग हैं और उसके बावजूद जो है वो इस संसार में कण कण में वास करते हैं। तो कैसे इस विश्व रूप में वो स्थित हैं उसको देखना चाहते हैं। अर्जुन एड्रेसिंग द लॉर्ड एज पुरुषोत्तम इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो पुरुषोत्तम क्यों बोला, उसकी भी वजह है। ही इज प्रेजेंट विद इन अर्जुन हिमसेल्फ। Since the Lord is Supreme Personality Godhead, He is present in Arjun himself. Therefore, he knows that the desire of Arjun, and he can understand that Arjun has no special desire to see him in his universal form. For Arjun is completely satisfied to see him in his personal form of Krishna. तो पुरुषोत्तम वर्ड क्यों यूज करते हैं? तो एक्चुअली में जानते ही हैं पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। कुछ लोग पुरुष हैं कहते समझते हैं, बट एक्चुअली में पुरुष भाव है। ये शरीर हमें पुरुष का भगवान के जैसा मिला है, बट हम भी जो है स्त्री ही हैं। वी आर ऑल्सो वुमन इन व्हाट एसेंस दैट कृष्णा इज आदि पुरुष, ही इज द कंट्रोलर, ही इज द शक्तिमान, एंड वी आर प्रकृति, वी आर फेमिनाइन नेचर, वी आर कंट्रोल्ड, वी आर शक्ति, एंड कृष्णा इज द कंट्रोलर आदि पुरुष, ही इज शक्तिमान। सो हियर वी आर एक्चुअली इमिटेटिंग, इस संसार में आके हम पुरुष कंट्रोल करने का प्रयास करें पर कर ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज हम अपने स्वभाव से विपरीत कार्य कर रहे हैं पुरुष का कंट्रोल करने का, इसलिए हम इस संसार में कष्ट पा रहे हैं। ओनली कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। सो दैट्स व्हाई
पुरुष में भी पुरुषोत्तम है, साधारण नहीं, ही इज आदि पुरुष, ही इज कृष्णा पुरुषोत्तम। और एक और अर्थ होता है तम, तम का अर्थ होता है तमोगुण, अज्ञानता। तो उस तम का जो है पतन करके खत्म करना, उस उत्तम है ना, तम से ऊपर उत्तम है ना, तो पुरुषो उत्तम, पुरुषो उत्तम। सो आउट ऑफ दिस highest personality, there are so many controllers, but out of them the highest and free from ignorance is called Purushottama, and that is Krishna. So that's why also Krishna is being told as Purushottam by Arjuna. So and Lord knows what Arjuna's inside desire is, but he is asking for this universal form to be revealed, जिससे आगे भविष्य में कोई व्यक्ति ये ना क्लेम कर सके कि भाई मैं देखो भगवान हूँ। अगर भगवान हो तो अपना विराट रूप दिखाओ। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम पे कैसे प्रूफ करें कि कृष्ण है सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड, कृष्ण ही परम भगवान है, कोई और देवी देवता कोई और कोई नहीं। किस तरीके से? हाँ, किसी ने विराट रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया, क्या कोई जो है कण कण में वास करता है? नहीं। इस तरीके से बट द लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो दैट अर्जुन वांट्स टू सी द यूनिवर्सल फॉर्म टू कन्विंस अदर्स, दूसरों को समझाने के लिए कि भगवान कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्जुन डिड नॉट हैव एनी पर्सनल डिजायर फॉर कंफर्मेशन, उनको डाउट नहीं था, उनको माध्यम बनाया जा रहा है हमारे डाउट को क्लियर करने के लिए। सो Krishna also understands that Arjun wants to see the universal form to set a criteria for in the future would be so many imposters who would pose themselves as incarnations of God. तो भविष्य में कई सारे ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोग आएंगे, कहेंगे कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो ये क्राइटेरिया स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, अच्छा अगर भगवान है तो यूनिवर्सल फॉर्म दिखाओ, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कुरुक्षेत्र भूमि में। The people therefore should be careful. One who claims to be Krishna should be prepared to show this universal form to confirm his claim to the people. तो ऐसे इम्पोस्टर या धोखेबाज लोगों को रेडी रहना चाहिए। साधारण जनता को बेवकूफ बनाने से पहले ये सोच लें कि उनको विश्व रूप दिखाना पड़ेगा। सावधान। मन्यसे यदि तच्चक्राम मया दृष्टुम इति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनाम अव्ययम्। If you think that I am able to behold your cosmic form, O my Lord, O Master of all mystic power, then kindly show me that unlimited universal self. तो भगवान अगर आप मानते सोचते हो कि मैं आपके इस विश्व रूप को देख सकूंगा तो कृपा करके मुझे अपना ये विश्व रूप दिखलाइए। It is said that one can neither see, hear, understand nor perceive the Supreme Lord Krishna by material senses. तो हम ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनन भक्ति रुच्यते, है ना, तद उपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनन भक्ति रुच्यते। सो हम भगवान को इन जड़ इंद्रियों से नहीं देख सकते, समझ सकते, केवल अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा सकते हैं। उसको लगा के जो है हम जो है शुद्ध करके इनको हम जो है सारी उपाधियों से ऊपर उठ के भगवान को समझ जान सकते हैं, अदरवाइज भौतिक इंद्रियों से नहीं जान सकते। ये क्लियर रखिए, है ना। तो हरि नाम के माध्यम से जो है हम जो है भगवान को जान सकते हैं, अदरवाइज नहीं। These are dead material senses. How can we know something which is beyond the spiritual? But if one is engaged in loving transcendental service to the Lord from the beginning, then one can see the Lord by revelation. तो revelation होगा, भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। कब? जब हम भगवान को प्रेम से सेवा करेंगे। प्रेमांजना भक्ति विलोचनेना संता हृदेषु विलोकयन्ति, तब भगवान अपने आप
प्रकट करेंगे, प्रेम के अंजन से भगवान को देखने का प्रयास करेंगे तो। Every living entity is only a spiritual spark, therefore it is not possible to see or to understand the Supreme Lord. तो एक कण है हम, spiritual spark है। Krishna is Vibhu, we are Vibhinananj. Arjuna as a devotee does not depend on his speculative strength, rather he admits his limitations as a living entity and acknowledges Krishna's inestimable position. तो अर्जुन जो है एक भक्त है, और वो स्पेकुलेशन नहीं करे ऐसे होंगे भगवान, ऐसा होगा, ऐसा विराट रूप होगा। वो अपने आप को मानते हैं कि भगवान मैं तो नहीं देख पा सकता आपको, आप कृपावश दिखा सकते हैं। Arjun could understand that for a living entity it is not possible to understand the unlimited infinite. If the infinite reveals himself, then it is possible to understand the nature of the infinite by the grace of the infinite. तो जीवात्मा भगवान इनफाइनाइट है, उनको नहीं समझ सकती, जान सकती, पर हाँ अगर भगवान चाहें, इनफाइनाइट दिखाना चाहें, अपने आप को बताना चाहें, then by their mercy it can happen. So यही चीज जो है हमें अर्जुन जो है पीछे इसी चीज को हमने सुना था ना, भगवान भी पिछले अध्याय में बोले कि ये मैं कुछ विभूतियां बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, एक छोटा सा नमूना है ना मेरी ऐश्वर्यों का, और ये तो अनंत है विभूतियां, मैं बस थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, है ना। तो इसी तरीके से हमें समझना है, वी कैन नेवर नो कृष्णा, बट as much as Krishna will reveal as per our bhakti, we will get to know. The word Yogeshwara is also very significant here because the Lord has inconceivable power. If he likes, he can reveal himself by his grace, although he is unlimited. तो योगेश्वर भगवान जो है योगेश्वर हैं, तो यहाँ पे योगेश्वर तत्व में त्वम, है ना। तो योगेश्वर वर्ड यूज करा जा रहा है कि योगेश्वर जो सारे योगियों के ईश्वर हैं, सारे योगी जिस पे ध्यान लगा रहे हैं वो योगेश्वर। कृष्णा इज द टॉप मोस्ट योगी, और योगियों के ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। तो कोई व्यक्ति अगर योग कर रहा है और भगवान कृष्ण को एम नहीं करके, ही इज नॉट अ रियल योगी। तो भगवान अगर कृपा करें ऐसे योगी पे, तभी उसको रिवील हो सकते हैं। Therefore, Arjun pleads for the invincible grace of Krishna. इसलिए हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, पावर ऑफ प्रेयर्स। अभी दामोदर मास है तो प्रार्थना दामोदराष्टकम, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे को कोई मोक्ष की अभिलाषा नहीं है भगवान, है ना, मैं बस आपकी भक्ति चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। तो इस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमें कृपा करेंगे, और उस कृपा से हम भगवान को जान पाएंगे। हम करता नहीं है, वी आर नॉट द डूअर्स, इट इज कृष्णा डिजायर। इफ ही विश टू एक्ट थ्रू अस, देन कृष्णा will, if he desires so, and from us many big things can happen. अगर हम इच्छा नहीं करेंगे, भगवान की प्रार्थना नहीं करेंगे, तो भगवान तो अपना कार्य करा ही लेंगे। But the point is, we can pray and get those things done through our being as instrument and get the credit of doing that, although Krishna is doing, but we can just be the medium of that. इसलिए प्रार्थना करके हो सकता है। He does not give Krishna orders. Krishna is not obliged to reveal himself unless one surrenders fully in Krishna consciousness and engages in devotion service. तो कृष्णा, हम प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे, कृष्णा इज नॉट योर ऑर्डर सप्लायर। ये आपने बोला भगवान ये कर दो, ऐसा कर दो, वो ये हो जाना चाहिए, वो होना चाहिए। नो, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इज नॉट योर सर्वेंट, इज नॉट योर ऑर्डर सप्लायर। सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड आपको फॉलो करें, आपकी बात सुने। But unless if one becomes pure devotee, then yes, that is a different thing. But right now, Krishna, for us, we are conditioned souls. Why Krishna will follow what we say? Thus, it is not
possible for persons who depend on the strength of their mental speculation to see Krishna. तो अपने मनोकल्पना के आधार पर कृष्ण को समझना जो चाह रहे हैं वो कभी नहीं जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि कृष्ण कौन है। कृष्ण ही रिवील करते हैं अपने आप को, जिसको करना होगा वो व्यक्ति को रिवील करेंगे और वो व्यक्ति जान पाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि षष्टशो अथ सहस्रशा नानाविधानि दिव्यानि नानावक्रात्रीनि च। The Supreme Personality of Godhead said, My dear Arjuna, O son of Pritha, see now my opulences, hundreds of thousands of varied, divine and multicolored forms. अब भगवान जो है स्वीकार करे इस बात को कि ठीक है, और फिर अब जो है भगवान अपना विराट रूप जो है दिखाना आरंभ करेंगे। सो अब बहुत ही ध्यान पूर्वक जो है श्रवण करिएगा, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें जो हैं आएंगी जो कि हम सुनेंगे बट समझ नहीं पाएंगे, इसलिए श्रद्धा से और प्रेम से और विश्वास से श्रवण करिए। और अब जो है हम क्या जानेंगे, लॉर्ड कृष्णा डिस्क्राइब्स हिज यूनिवर्सल फॉर्म। Arjun wanted to see Krishna in his universal form, which although a transcendental form is just manifested for the cosmic manifestation and is therefore subject to the temporary time of this material nature. तो ये दिव्य तो है पर ये टेम्पररी है, क्योंकि मटीरियल नेचर कहाँ से प्रकट हुआ है, भगवान से हुआ है, वो भगवान की एनर्जी है। तो दिस फॉर्म इज ट्रांसडेंटल बट बिकॉज इट इज दिस यूनिवर्स इज टेम्पररी, तो दिस फॉर्म इज ऑल्सो टेम्पररी। जैसे यूनिवर्स खत्म होगा समय के प्रभाव से, तो वो यूनिवर्सल फॉर्म भी खत्म हो जाएगी। बट दैट इज इफ ट्रांसडेंटल नेचर ऑफ डिवाइन नेचर ऑफ कृष्णा। As a material nature is manifested and is not manifested, similarly this universal form of Krishna is manifested and non-manifested. It is not eternally situated in the spiritual sky like Krishna's other forms. So भगवान के सारे रूप जो भी भगवान अवतार लेते हैं वो वैकुंठ में उनका प्लैनेट है, उनकी फॉर्म एग्जिस्ट करती है। जैसे मत्स्य रूप लिया तो मत्स्य ग्रह है, और वराह रूप लिया, नरसिंह रूप लिया, ये सब प्लैनेट्स वैकुंठ में एग्जिस्ट करते हैं। बट ये जो विराट रूप है, दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस मटेरियल नेचर, दिस वर्ल्ड, so that's why it is not existing in the spiritual sky. So he is not eager to see the universal form. Devotee, as far as a devotee is concerned, he is not eager to see the universal form, but because Arjun wanted to see Krishna in this way, Krishna reveals this form. This universal form is not possible to be seen by any ordinary man. Krishna must give one the power to see it. तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता, केवल भगवान कृष्ण अगर शक्ति दें किसी को तभी वो देख सकता है। पश्यदित्यान् वासून् रुद्रान् अश्विनो मारुतास्तथा बहूनि अदृष्टा पूर्वाणि पश्यञ्चरयानि भारत। O best of the Bharatas, see here the different manifestations of Adityas, Vasus, Rudras, Ashwini Kumaras and all the other demigods. Behold the many wonderful things which no one has ever seen or heard before. तो अब इस यूनिवर्सल फॉर्म में क्या दिख रहा है, बहुत सारे देवी देवता दिख रहे हैं। कौन? आदित्य, तो दिति और अदिति है ना, तो दैत्यास और आदित्यास, देवता और जो कि राक्षस है ना, तो ये तो
अदिति के पुत्र जो आदित्यास हुए, तो आदित्य, वासुस, रुद्रास, अश्विनी कुमार्स एंड ऑल अदर डेमी गॉड्स, तो ये सब जो है दे आर कंबाइंड टू फॉर्म द 4 लाख ह्यूमन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो उसमें हम एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, ऐसी एक ब्रह्मा है, ऐसी देवी देवता हैं, आदित्यास, वासु, रुद्रास, अश्विनी कुमार, ये सब। तो behold the many wonderful things which no one has ever seen or heard before। तो ऐसी चीजें आपको दिखने को मिलेंगी जो कि कभी किसी ने नहीं देखी हैं, सुनी है। Even though Arjun was a personal friend of Krishna and the most advanced of learned men, it was still not possible for him to know everything about Krishna। तो अर्जुन जो है उनके सखा, सबसे क्लोज पर्सन, एडवांस लर्न मैन, एवरीथिंग, बट फिर भी उनके लिए कृष्ण के बारे में सब कुछ जान पाना संभव नहीं है। Here it is stated that humans have neither heard nor known of all these forms and manifestations. Now Krishna reveals these wonderful forms। तो इसका अर्थ क्या है? कि इसका अर्थ है कि कृष्ण दिखा तो रहे हैं अर्जुन को अपनी यूनिवर्सल फॉर्म को, पर उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अर्जुन को नहीं समझ में आएंगी। तो अर्जुन को नहीं दिख रही, नहीं समझ में आएंगी, तो हमें तो क्या ही, तो साधारण व्यक्ति को तो कृष्ण के बारे में एक्चुअली में बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम पता चलेगा। तो इसलिए शुद्ध भक्त बनना बहुत इम्पोर्टेंट है, और प्रचार करना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए संसार में भगवान भेजते हैं भक्तों को प्रचार करने के लिए, बद्ध जीवात्मा को संसार से निकालने के लिए। इहैकास्थां जगत कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणकेश यश्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। O Arjuna, whatever you wish to see, behold at once in this body of mine. This universal form can show you whatever you now desire to see, and whatever you may want to see in the future. Everything moving and non-moving is here completely in one place। तो जो भी आप इच्छा करो देखना वो दिखेगा, जो भी भविष्य में चाहो देखना वो दिखेगा, जो भी चर अचर है, पूर्ण है, सब कुछ यहाँ इस स्थान में आपको दिखेगा। क्या वंडरफुल रूप रहा होगा, अमेजिंग। सो भगवद गीता में इसका एक फोटो है जो कि इनकंसीवेबल है, उसको भी समझना। No one can see the entire universe while sitting in one place। Even the most advanced scientists cannot see what is going on in other parts of the universe, but a devotee like Arjuna can see everything that exists in any part of the universe। तो इस विराट रूप की वजह से, और भगवान के भक्त हैं अर्जुन, एक जगह पे स्थित होकर देख पा रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पर कोई भी साइंटिस्ट आज के टाइम में नहीं देख पाएगा, नहीं समझ पाएगा। सो कृष्णा गिव्स हिम the power to see anything he wants to see, past, present and future। Thus by mercy of Krishna, Arjuna is able to see everything। So now Krishna will provide some gift to Arjun। What is that? Na tumam shakshase drishtum अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वर्यम। तो अभी 3 श्लोकों में बताए कि कैसा विराट रूप होगा, इसमें आप क्या क्या देख सकोगे, है ना। उसका एक डेमो बताए, नमूना बताए कि ऐसा ऐसा दिखेगा आप, है ना। और उसको देखने के लिए भगवान उनको दिव्य चक्षु यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। But you cannot see me with your present eyes, therefore I give you divine eyes, behold my mystic affluence। A pure devotee does not like to see Krishna in any form except his form with 2 hands। A devotee must see his universal form by his grace, not with the mind but with the spiritual eyes। तो यहाँ पे एक प्रश्न बेसिकली उठेगा मन में कि अच्छा, ये तो भगवान का दिव्य रूप है, 2 हाथों वाला, ये भी तो दिव्य ही है ना, ये तो गोलोक वृंदावन में ऐसी तो भगवान है ना, सबसे दिव्य तो वही है, उससे बड़ा क्या दिव्यता होगी। यस,
तो ऐसा, या तो इसका मतलब ये हुआ प्रभु जी कि ये जो विराट रूप है ये दिव्य है, ट्रांसडेंटल है, और उसके साथ साथ मटीरियल आपने बोला पहले। इसको देखने के लिए, इस टेम्पररी ट्रांसडेंटल रूप को देखने के लिए क्या चाहिए? दिव्य आंखें चाहिए। पर भगवान जो कि आप बोलते त्रिभंग ललितम है, और हमेशा एवर यूथफुल है, टू हैंडेड फॉर्म है कृष्ण की, ही इज ट्रांसडेंटल, ही लिव्स इन गोलोक वृंदावन। उनको देखने के लिए तो अर्जुन बिना ट्रांसडेंटल आंखों के देख पा रहे हैं। तो वो ट्रांसडेंटल है कि ये जो विराट रूप है ये ट्रांसडेंटल हुआ? तो यहाँ पे दिव्य दृष्टि देने की क्या जरूरत थी, अगर अर्जुन जो है देख पा रहे थे कृष्ण जो कि गोलोक वृंदावन से? यस, वैलिड क्वेश्चन। तो लेट अस रीड परपट, इसलिए हम हर चीज नहीं समझ पाए। The pure devotee does not like to see Krishna in any form except his form with two hands. A devotee must see his universal form by his grace, not with the mind but with spiritual eyes. To see the universal form of Krishna, Arjuna is told not to change his mind but his vision. The universal form of Krishna is not very important, that will clear in subsequent verses. Yet because Arjuna wanted to see it, the Lord gives him the particular vision required to see the universal form. तो ये बात है कि भक्त जो है वो सिर्फ दो हाथ, जो भगवान के टू हैंडेड फॉर्म, डिवाइन फॉर्म है, उसी में भगवान को दर्शन करना चाहते हैं, है ना? नॉट विद द माइंड बट विद द स्पिरिचुअल आइज। अर्थ क्या है कि मन में ही भगवान के रूप को हमेशा बसाए रखा है, और भगवान को उसी रूप में दर्शन उनको प्राप्त हो रहा है। पर अब जैसे ही बात है यूनिवर्सल फॉर्म की, तो इसके लिए जो है आंखों की जरूरत है, क्योंकि वो मन से तो देखना नहीं चाह रहे, तो सिर्फ विजन से देखना चाह रहे हैं। अपने मन से थोड़ा बस, अपने मन में थोड़ा उस फॉर्म को बसाना चाह रहे हैं, वो एक्सटर्नली विजन से बस देखना चाह रहे हैं। So devotees who correctly situated in a transcendental relationship with Krishna are attracted by loving features, not by godless display of affluences. तो ऐश्वर्य जिसमें गॉडलेसनेस हो, उससे आकर्षित नहीं होते भक्त। भक्त किससे होते? दिव्य जो संबंध है भगवान के साथ, उसको उसमें रह के भगवान की सेवा करना चाहते हैं। Loving relation, loving features. The playmates of Krishna, the friends of Krishna and the parents of Krishna never want Krishna to show his opulence. नहीं चाहते थे। यशोदानंद बाबा, यशोदा मैया को कितनी बार ब्रह्मांड का दर्शन कराया अपने मुंह में? 2 बार। और उसके बाद भी वो कहते यार ये मेरा तो बालक है, ये तो मेरा लाला है, ये तो कृष्ण का नहीं है हमारा प्यारा सा, वो थोड़ा विष्णु है, ये थोड़ा भगवान हो सकता है। तो उनको उस ऐश्वर्य में देखना ही नहीं चाहते थे उनके सखा, उनके माता पिता। So they are so immersed in pure love that they do not even know that Krishna is the supreme personality God. उनको बस प्रेम है भगवान से, उनको ये मतलब नहीं कि भगवान भगवान है, उनको मतलब है ये हमारा लल्ला है, हमें इससे प्रेम करना, बस ये उनका प्रेम है। In the loving exchange, they forget that Krishna is the supreme Lord. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that the boys who play with Krishna are all highly pious souls, and after many births, they are able to play with Krishna. तो इतना प्रेम में उन्माद है कृष्ण के कि वो भूल चुके हैं कि ये भगवान है। और श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि ये जो सखा जो हैं सब गोप बाल, ये इन्हें कई जन्म जो है बहुत पुण्य कार्य कर हैं, इसकी वजह से इनको कृष्ण के साथ खेलने को मिला है। कृत्य पुण्य ऐसे करके श्लोक है कि कई जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं तब ऐसा भाग्य उदय होता है कि भगवान कृष्ण के साथ ऐसी लीलाएं करने को सौभाग्य मिलता है। Such boys do not know that Krishna is the supreme personality of Godhead. They take him as a personal friend. Therefore, Sukdev Goswami recites this verse. Etam satam brahma sukhana bhutaya dasyam gatanam paradevetena mayashritanam naradharakena सखम विरजरु कृत पुण्य पुंजता। वही श्लोक है, कृत पुण्य पुंजता। कई जन्मों का पुण्य जब पुंज बहुत इकट्ठा हो जाता है तब जो है ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। Here is the supreme person
who is considered the impersonal Brahman by the great sages, the supreme personality Godhead by devotees, and a product of material nature by ordinary man. Now these boys who have performed many pious activities in their past lives are playing with that supreme personality of Godhead. Srimad Bhagavatam 10, 12, 11. The fact is that the devotee is not concerned with seeing the virāṭ-rūpa, the universal form, but Arjuna wanted to see it to substantiate Krishna's statement so that in the future people could understand that Krishna not only theoretically or philosophically presented himself as the supreme, but actually presented himself as such to Arjuna. Arjuna must confirm this because Arjuna is the beginning of the parampara system. Those who are actually interested in understanding the Supreme Personality Godhead, Krishna, and who follow in the footsteps of Arjuna should understand that Krishna is not only theoretically presented himself as Supreme, but actually revealed himself as Supreme. So, भगवान केवल अपने आप को ये फिलॉसफी इतने सारे चैप्टर्स बोल के सिद्ध नहीं कर दी फिलोसफिकली थियोरेटिकली कि मैं भगवान हूँ, तो प्रैक्टिकली भी अब रिवील कर रहे हैं. The Lord gave Arjuna the necessary power to see his universal form because he knew that Arjuna did not particularly want to see it, as we have already explained. तो अब संजय वहां पे धृतराष्ट्र के पास कहाँ हस्तिनापुर में क्या बोल रहे हैं? संजय वाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय paramam rupam eshwaram. Sanjaya said, O king, having spoken thus, the supreme lord of all mystic power, the personality of Godhead, displayed his universal form to Arjuna. तो अब वहां पे भी बता रहे हैं कौन? संजय. किसको? धृतराष्ट्र को. कि इस तरीके से जो है अब भगवान कृष्ण जो है अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं. तो एक तरह से कह रहे हैं, अरे भैया ये साधारण व्यक्ति नहीं है. आप लोग जो सोच रहे थे ना कृष्ण पांडव ये लोग क्या साधारण लोग हैं, क्या कर लेंगे हमारा, है ना. मेरे माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय. क्या चल रहा है संजय, देखो युद्ध का बताओ यार, थोड़ा लाइव टेलीकास्ट है. ब्रेकिंग न्यूज क्या हुई, युद्ध में क्या चला, मेरे बेटे जीते कि पांडु के पुत्र जीते, युद्ध करने को रेडी है ना, युद्ध हो रहा है कि नहीं. ऐसा तो नहीं कि सुलह हो गई कुछ आ गए वापस. युद्ध होना चाहिए, मेरा पुत्र जीतना चाहिए, वही राजा बनना चाहिए. मैं अपने पुत्र से बहुत आसक्त हूँ, है ना. तो अब संजय वगैरह बता रहे हैं, देखो अब तो विराट रूप भी दिखा दी है भगवान कृष्ण ने, साधारण नहीं है. क्यों अपने दुर्योधन को मरवाना चाहते, क्यों अपने कौरव वंश को खत्म कराना चाहते इस महायुद्ध महाभारत से. अब आगे बता रहे हैं कौन? संजय. अनेका वर्तरया ज्ञान्यानाम अनेका भूत दर्शनाम अनेका दिव्य भरनाम दिव्य अनेका उदयात युद्धाम दिव्य मालायाम भराधराम दिव्य गंधानुलोपनाम सर्वश्चर मायाम देवम अनंतम विश्वशतो मुखम. तो अनेक वेरियस वक्त्र माउथ्स, नैना नेत्र आईज, अनेक वेरियस अद्भुत वंडरफुल साइट्स. इस तरीके से अर्जुन saw in that universal form unlimited mouths, unlimited eyes, unlimited wonderful visions. The form was decorated with many celestial ornaments and bore many divine upraised weapons. He wore celestial garlands and garments, and many divine scents were smeared over his body. All was wondrous, brilliant, unlimited and all expanding. तो ये संजय बता रहे हैं अर्जुन ने क्या देखा. तो बहुत सारे उसमें दिव्य यूनिवर्सल फॉर्म है, उस माउथ्स हैं उस रूप में, और बहुत सारे अनलिमिटेड असंख्यनीय जो है आंखें हैं, और बहुत सारे सेलेस्टियल ऑर्नामेंट्स से, है ना, ज्वेलरी मतलब बहुत सारे सेलेस्टियल ऑर्नामेंट्स हैं और हथियार हैं, बहुत सारे मालाएं हैं, वस्त्र हैं और गंध हैं, यानी इस तरीके से बहुत सुंदर, वंडरस, ब्रिलियंट, अनलिमिटेड, ऑल एक्सपैंडिंग. तो अब क्वेश्चन उठता है, यार ये संजय को तो नहीं दिया था दिव्य दृष्टि, इसको कैसे दिख रहा है?
In these two verses, the repeated use of the word many indicates that there was no limit to the number of hands, mouths, legs, and other manifestations Arjuna was seeing. These manifestations were distributed throughout the universe. But by the grace of the Lord, Arjuna could see them while sitting in one place. That was due to the inconceivable potency of Krishna. तो ये सब देख पा रहे थे कि भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी. दिवि सूर्या सहस्रया भवेद युगपद उत्थिता यदि भाव सदृश स्याद भासास्तस्य महात्मनः. If hundreds of thousands of suns were to rise at once in the sky, their radiance might resemble the effulgence of that of the supreme person in that universal form. तो अनंत कोटि जो बहुत सारे हजारों जो हैं सूर्य अगर प्रकट हो जाएं एक साथ, तो उसका जो तेज है ये वो जो है इस विश्व रूप से जो प्रकट हो रहा है उसके समान लगेगा. हमें तो एक सूरज को नहीं देख पाते ढंग से, इतने सारे आ जाएंगे तो क्या ही हम देख पाएंगे. कितने महान, कितना सुंदर दृश्य होगा. What Arjuna saw was indescribable. Yet Sanjay is trying to give a mental picture of that great revelation to Dhritarashtra. Neither Sanjay nor Dhritarashtra was present, but Sanjay, by the grace of Vyas, could see whatever happened. Thus, he now compares the situations as far as it can be understood to an imaginable phenomenon. तो जो चीज दृश्य होती है उससे अदृश्य या चीज को समझाने का प्रयास किया जाता है. जो चीज इनएक्सप्लेनेबल होती है उसको ऐसे शब्दों में ढाला जाता है, इस कंपैरिजन रूपक देके समझाया जाता है. अच्छा ऐसा जो आपने देखा है एक चिड़िया होती है वैसे से कुछ दिख रहा है ना, एक उपमा देके समझाते हैं जो चीज नहीं समझाई जा सकती है. ठीक है, तो इस तरीके से तो संजय को कैसे दिख रहा था, उनको तो दृष्टि नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि प्राप्त कैसे था, व्यास देव की कृपा से. वो कौन है, वो भगवान के अवतार हैं. तो बाय दैट वी कैन अंडरस्टैंड गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिए कार न करे मन आशा. तो उसकी वजह से गुरु की कृपा से संजय भी जो है देख पा रहे थे, उनके पास भी दिव्य दृष्टि थी, इसलिए वो भी जो है अर्जुन जो देख पा रहे हैं दिव्य दृष्टि के माध्यम से वो भी देख पा रहे हैं. बिकॉज Guru and Krishna are practically non-different, especially Vyasdev is non-different because he is literally incarnation of Krishna. So why not Sanjay could see. Okay, तो हम यहीं तक चर्चा करते हैं आज और फिर हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे वर्स 13 से. Okay, so if you have any question, any doubt, any comments, so now may ask. Okay, so we'll meet next time. Thank you everyone. Hare Krishna, Jai Krishna Prabhupada.